ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਸਿੱਧੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦਾ ਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦਾ ਏ। ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਲੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੀ ਏ, ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਲੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੀ ਏ। ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ, ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦਾ ਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੀ ਏ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇਰੀ ਏ। ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦਾ ਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦਾ ਏ। ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਲੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੀ ਏ, ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਲੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੀ ਏ। ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦਾ ਏ। ਜਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਰੋਵੇ, ਜਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਪੂੰਝਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਵਾਂ ਫੜਦਾ ਮੇਰੀ ਏ, ਤੂੰ ਪੂੰਝਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਮੇਰੀ ਏ। ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦਾ ਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ
ਆਸਰੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਰੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਰੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਰੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੰਗਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਆਦਤ ਤੇਰੀ ਏ। ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਆਦਤ ਤੇਰੀ ਏ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦਾ ਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦਾ ਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦਾ ਏ। ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਲੇ ਦੁਖਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੀ ਏ, ਹਾਂ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਲੇ ਦੁਖਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੀ ਏ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ, ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ दया बथेरी हालेलुया। खुदावंद तुहानू इस गीत दे राहीं आशीष और बरकत देवे, आमीन। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा और जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने मैं अभी वचन में से पढ़ूंगा प्रेरितों के काम 13 बाप उसकी 2 आयत। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने बुलाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ आप अगर देखें पवित्र आत्मा के कार्य कैसे होता है, पवित्र आत्मा के कार्य। यहां जब प्रभु के चेले प्रार्थना कर रहे थे और यहां साफ लिखा हुआ है कि से उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो परमेश्वर ने यहां कार्य किया, पवित्र आत्मा ने कार्य किया और मंडली के अध्यक्ष के अभिषेक के समय मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने एक कार्य शुरू किया। और यहां क्या कहता है से तुम सब अभी इकट्ठे हो, अब मैं तुझे अलग अलग कर रहा हूं, एक जगह नहीं, अब अलग अलग कर रहा हूं। मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने बुलाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। और यहां पवित्र आत्मा क्या कहता है? इन दोनों को अलग कर, बरनबास और शाऊल को अलग कर, और जब अलग करेगा तो मैंने इन्हें चुना है और मैंने इन्हें बुलाया है और मेरे काम के लिए ये कार्य करेंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मंडली के जब अध्यक्ष के अभिषेक का समय था, तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बार हम लोग इकट्ठे रहते हैं, सेवा इकट्ठे करते हैं, लेकिन जब कोई भाई बहन अलग होता है तो हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब पवित्र आत्मा के अगुवाई में जाए, इकट्ठे बैठकर जो है उपवास करें और उपवास करके प्रार्थना करें और प्रार्थना करके मांगे से प्रभु हमारे लिए क्या योजना है, पवित्र आत्मा मुझे बता मेरे लिए क्या योजना है।
तब पवित्र आत्मा आपको योजना बताएगा। इसलिए हमें और आपको उपवास करना जरूरी है। परमेश्वर की योजना को जानने के लिए उपवास करना जरूरी है। आप अपनी जिंदगी की योजना अगर जानना चाहते हो तो उपवास करो और पवित्र आत्मा आपको योजना बताएगा। यहां देखिए, बरनबास और शाऊल को परमेश्वर ने योजना बताया, पवित्र आत्मा ने योजना बताया। आज हम पवित्र आत्मा से पूछते ही नहीं है, उपवास करते ही नहीं है और फिर हम निकल चलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ना आपके साथ पवित्र आत्मा होता है, ना आपके साथ यीशु होता है, कोई भी साथ नहीं होता है और हम ऐसे ही निकल चलते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा और उपवास करोगे तो उपवास के जरिए पवित्र आत्मा आएगा, तो पवित्र आत्मा गाइड करता है, जिस तरह की बरनबास और शाऊल को गाइड किया से तुम अब यहां से अलग हो और तुम मेरे लिए चुने गए हो और मेरा ही कार्य करोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए हमें और आपको उपवास करने की जरूरत है। और प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने बुलाया है। यह साफ लिखा, उस काम के लिए अलग करो जिस काम के लिए मैंने बुलाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना याद रखना से जब आप उपवास करोगे और पवित्र आत्मा आएगा और आपको संसारिक बातों से अलग करेगा, संसारिक चीजों से अलग करेगा, संसारिक कामों से अलग करेगा, संसारिक विचारों से अलग करेगा। और जैसा संसार करता है वैसा आप नहीं करोगे। इसीलिए बरनबास और शाऊल जैसा संसार करता था वैसा वो लोग नहीं करते थे। संसार जैसा बरनबास और शाऊल का विचार नहीं था, संसार जैसा उसका काम नहीं था, आज संसार जैसा उसका सेवा नहीं था, बल्कि दुनिया से अलग हटकर उसका सेवा था। और वो सेवा कौन कराने वाला था? पवित्र आत्मा। उपवास से ही तो प्रार्थना करते थे और पवित्र आत्मा ने उन्हें अलग किया। और पवित्र आत्मा बरनबास और शाऊल से कभी अलग नहीं हुआ। और मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा जहां ले जाना चाहता था वहां वो परमेश्वर का वचन सुनाते थे। बड़ी दूर दूर तक, बहुत वादियों में पवित्र आत्मा उसे लेकर गया। इसके पीछे बैकग्राउंड देखो, इनकी उपवास और प्रार्थना थी। उपवास और प्रार्थना आज हमारा बैकग्राउंड होना जरूरी है। उपवास और प्रार्थना होना जरूरी है और पवित्र आत्मा भी होना जरूरी है। उपवास और प्रार्थना जब करोगे प्रभु के आगे तो पवित्र आत्मा भेजेगा और फिर आपको जो है आगे लेकर चलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक सेवक के अंदर उपवास करना और पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। एक सेवक के अंदर उपवास भी जरूरी है, प्रार्थना भी जरूरी है। और जब सच्चे दिल से, विवेक से आप उपवास करोगे और प्रभु के आगे रखोगे, जैसे आगे मुझे क्या करना है, क्या योजना है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उपवास और प्रार्थना जब करोगे तो पवित्र आत्मा भेजेगा और आपको जो है अलग कर कर लेके जाएगा और जहां चाहता है वहां आपसे सेवा लेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ऐसे आप करना चाहते हो? और अगर ऐसे करना चाहते हो तो परमेश्वर की आशीष मैं तीसरी प्रेरितों के काम 13:3 में बताऊंगा, जिसे जब ऐसा करोगे तो परमेश्वर के दास क्या करते हैं उनके लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं, आपको दो चीजें अभी याद रखो, उपवास और प्रार्थना, और तब आपको पवित्र आत्मा आएगा। हमें और आपको उपवास भी करना जरूरी है, प्रार्थना भी करना जरूरी है, तब परमेश्वर का आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा, और आपको गाइड करेगा।
तो आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज ऐसा करना चाहते हैं उनके जीवन में तू आशीष बरकत दी, और एक मसीह अध्यक्ष बनना चाहते हैं, मंडली का जो है अध्यक्ष बनना चाहते हैं, मंडली का एक अभिषेक अध्यक्ष होना चाहते हैं, तो खुदाबंद उपवास और प्रार्थना जरूरी है और पवित्र आत्मा भी जरूरी है। जो बच्चे ऐसा करना चाहते हैं उन्हें खुदाबंद संभाल और उन्हें आशीषित कर, यीशु के नाम से, आमीन।